Assalamualaikum class 3. Hopefully you all will be fine. This is your math lecture of the new session of the online classes. Your first lecture. We are going to start the unit number 8. Unit number 8. So let's see what we have today. So class 3 we have unit number 8 fraction. Unit number 8 is fraction, okay? So first of all, what is the fraction? So let's see understanding the fraction, okay? So here see on page 103 understanding fraction. Look at the chapati. It is the whole or a one chapati. It is the whole or a one chapati, okay? So the chapati has divided into the two equal parts. Two equal parts. Here you can see it is divided into the two equal parts, okay? So two equal parts में divide कर दिया गया है हमें, ठीक है? The chapati has been divided to equal part. Each part is called half of the whole part या whole chapati. Half is written as 1/2 mean total. This is called mainly the fraction. This is the division line, and the lower number in the division line is called the denominator, and the upper number is called the numerator, okay? And they read as 1/2 or 1/2. Here the chapati has divided into the 4 equal parts. Here you can see, okay? So each part is called 1/4 and it written as 1/4 means स्टूडेंट अगर हमने इसके टोटल 4 पार्ट्स किए हैं तो एक पार्ट को कैसे लिखेंगे 1/4 पार्ट मीन इसका 4th पार्ट। एंड अगर यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स किए तो एक पार्ट को क्या लिखेंगे टोटल का 1/2 पार्ट, ओके? So now look at the given figure. It has divided into the 3 equal parts. Here the shape is given, okay? So parallelogram is shaped, okay? So here divided into the three equal parts. So each one part is represented by, each part is called 1/3 and is written by 1/3, okay? Now see student, the symbols 1/2, 1/3 and 1/4 are called the fractions, okay? The names 1/2 mean 1/2 and 1/3, okay, and 1/4 are called the fractional number. Observe the figure. Here this figure is given, as you see that 1 2 3 4 5 6 7 8. There are total 8 parts of this figure, okay? So we have writing the figure for the shaded part, okay? Fraction for the shaded part. How many shaded part? 1 2 and 3. Number of the shaded part and total number of the parts. Number of the shaded parts are 3, total number of the parts are 8, so the fraction 3/8, okay? सो मीन फ्रैक्शन बेटा क्या होती है कि हमारे पास कोई भी टोटल पार्ट्स या कोई भी टोटल एक चीज़ है उसको हम डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। तो अगर किसी एक पार्ट को या कुछ पार्ट को शो करना हो तो उसको फ्रैक्शन के ज़रिए शो किया जाता है, ओके? सो जो अपर नंबर होता है जो दिस लाइन इज़ कॉल्ड द डिवीजन लाइन एंड द अपर नंबर इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर। द अपर नंबर इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द लोअर नंबर इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर, ओके? So start from the very first exercise, exercise 8.1. Color a part of the each whole to represent the given fraction, okay students? If you see here, the fraction is given 5/12, 3/8 and 5/6, okay? Here 1 2 3 4 5 6 mean total parts are given in the lower side of the डिवीजन लाइन। जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो टोटल पार्ट्स को शो करता है, जो नीचे वाला नंबर होता है लाइक 1 2 3 4 5 6 8, सो 8 नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 नीचे लिखेंगे क्योंकि 12 हमारे पास क्या है जी नीचे वाला नंबर है इसका, ठीक है? सो अब जो ऊपर वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे शेडेड पार्ट के लिए हमने फ्रैक्शन लिखी थी, यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, हमने सिर्फ शेड करेंगे खुद से लाइक 3/8 आई मीन टोटल 8 पार्ट में से कोई से भी 3 को शेड करेंगे। सो लाइक हम इसको शेड कर लेते हैं, इसको भी शेड कर लेते हैं साथ, और इसको भी शेड कर देते हैं। ये 3 पार्ट्स को हम शेड कर देते हैं, ओके? सो हेयर 5 पार्ट्स शेड करेंगे टोटल 12 में से, तो हम ऐसे करते हैं, इसको भी एक शेड कर दिया फर्स्ट पार्ट को, एंड देन इसको शेड कर देते हैं, सेकेंड पार्ट को भी शेड कर दिया, ठीक है? देन थर्ड पार्ट को भी शेड कर दें, ठीक है? एंड नाउ इसको भी शेड कर देते हैं, और एक इसको इस वाले को शेड कर, आप कोई से भी पार्ट को शेड कर सकते हैं जो गिवन फ्रैक्शन उसको शो करने के लिए, ठीक है? क्लियर?
हमने 5 पार्ट्स को शेड कर दिया, टोटल पार्ट्स कितने थे 12, सिंपल। सो राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडिड पार्ट, शेडिड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल draw the division line. This is the center line is called the division line. Okay, now count the total parts of the given figure. Okay, 1 2 3 4 5 6. So write in the down total parts of the figure. How many parts are the shaded? Only one part, so write 1. Now write the fraction for this figure. 1 2 3, there are total parts are 3. How many shaded parts? 1 and 2, there are 2 shaded parts, so this is the fraction. Clear? Okay, part C you can solve by yourself. Okay, now move to the next exercise. Here student, question number 3 is write the fraction for the following one has been done for you. Okay, so just यहाँ पे हमारे पास बेटा जो इंग्लिश में वर्ड्स में लिखा हुआ है हमारे पास आंसर, हमने उसको नंबर्स में न्यूमेरल्स में शो करना है। उसको किस में शो करना है? न्यूमेरल्स में, ठीक है। 1/5 नीचे वाले नंबर को इस फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा, 1 2nd 3rd 4th 5th, मीन उसका लाइक 1/4 है, मीन बेटा हम 4 में से एक पार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1/5 है, मीन टोटल पार्ट्स आर देयर 5 एंड वी हैव टेकिंग ओनली 1 पार्ट फ्रॉम दी 5 पार्ट्स। किसी भी शेप के टोटल 5 पार्ट से तो हमने सिर्फ एक पार्ट को कंसीडर किया है, तो हम उसको लिखेंगे 1/5। जैसा कि यहाँ पे क्या है 3/5, मीन बेटा हमने टोटल पार्ट्स, फिफ्थ जो सेकंड वाला नंबर है वो टोटल पार्ट्स को शो करेगा, उसको नीचे लिखेंगे हमेशा डिनोमिनेटर में, ठीक है। टोटल पार्ट्स आर 5, सो वी आर टेकिंग 3 पार्ट फ्रॉम द टोटल, सो राइट जस्ट 3 हेयर। क्लियर? जितने टोटल पार्ट्स होंगे उनको नीचे, और जितने हमने कंसीडर करेंगे लाइक 3/5 है तो 3 को ऊपर एंड डिवीजन लाइन, एंड देन हम 5th को नीचे लिखेंगे। जैसे 2/3, देर आर टोटल हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 3, third mean 3, so write down 3 and 2 in the numerator which is shows 2/3, and same write the fractional number, write the fractional number। अब देखिए इसके लिए सिर्फ fractional number लिखेंगे, जैसे कि इसमें fractional number गिवन है, हमने उसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, और यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन उसके लिए फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं। ओके, उसके लिए क्या लिखना है जी? फ्रैक्शनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। सो राइट द फ्रैक्शनल नंबर। ओके, सो जैसा कि ये 1/3 है तो ये क्या होगा बेटा? 2/7, 2/7, 2/7। ओके, क्लियर? सो राइट 2/7। ओके, सो सेम ऐसे ही आप बाकी सब भी सॉल्व करेंगे। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड द denominator. Okay, a fraction has 2 parts, numerator and the denominator. Okay, this book is not printed correctly. Okay, so you can see in your books correctly. Okay, this is called the numerator, NUMERATOR, numerator and the denominator. Okay, a fraction is represented by a division line on a band. Okay, on a bar, ठीक है। The number above the division line is called the numerator and it shows how many parts out of the whole need to be taken to form a fraction. Okay, so बेटा जो अपर पार्ट होगा न्यूमरेटर वो शो करेगा कि हमने टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स कंसीडर करना है, ठीक है। द नंबर बिलो द डिवीजन लाइन मीन जो नीचे वाला नंबर होगा इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेज, एंड हाउ and it shows how many equal parts the whole is divided into. Okay, so बेटा फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होंगे, एक सेंटर वाली डिवीजन लाइन, लाइक इसको कंसिडर करते हैं डिवीजन लाइन, एंड अपर पार्ट को न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर लिखेंगे। ओके, तो नाउ एक्सरसाइज 8.2 इज राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 9। फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर है तो 9 को नीचे लिखेंगे, और न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं तो न्यूमरेटर यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट राइट द न्यूमेरल्स एंड द डिनोमिनेटर, राइट द न्यूमेरल्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग इन योर बुक्स। ओके, सो जस्ट बेटा आप देखें यहाँ पे
इसके लिए सॉरी न्यूमेरल्स नहीं, यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे। सो इसका न्यूमिनेटर क्या है जी 3 एंड डिनोमिनेटर क्या है 14। जस्ट आप इसको सेपरेटली लिखेंगे, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द 14। एंड नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल। ओके, सो जैसा कि फिगर यहाँ पे गिवन है बेटा, सो फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिफ्रैक्शन लिखेंगे। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर 2 पार्ट्स and how many shaded part is 1. What is the numerator? The upper part is the numerator obviously, and the lower part is the denominator. Here you can draw any shape by yourself, like I have draw here circle, and now shaded 3 parts of this circle. Okay, randomly I have draw. You can draw any picture. Okay, so first of all write the fraction for this circle. How many total parts? 1 2 3 4. How many total parts are there? Sorry, shaded part are there 3. So what is the numerator? 3. And what is the denominator is 4. Okay, clear? Here you can draw any picture by yourself and write down the. Okay student, clear? Now question number 4 is write the fraction for the following. Okay, Waqas has 14 cups, out of which 5 are red. The fraction of the cups, okay, the fraction of the caps. Waqas has 14 caps, out of which 5 are red. The fraction of caps which are red is. अब रेड कैप्स की फ्रैक्शन क्या होगी? टोटल कैप्स कितनी? हाउ मेनी टोटल कैप्स आर देयर? 14. सो वी हैव टेकिंग द 5 रेड कैप्स. सो जो किसी टोटल में से कंसीडर करना हो उसको हमेशा अपर मीन न्यूमिनेटर में लिखते हैं. तो न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे? 5 एंड टोटल कैप्स कितनी थी? 14. उस 14 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? सो 5/14 इसकी क्या होगी जी? हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन होगी. क्लियर? एंड सेम पार्ट है. मोना 8, 3 out of the 5 mangoes. The fraction for the remaining mangoes is 3 mangoes उसने खा लिए, मीन ईट कर लिए. ठीक है, टोटल मैंगोज आर देयर 5. हाउ? द फ्रैक्शन फॉर द रिमेनिंग मैंगोज. ओके, सो रिमेनिंग मैंगोज 3 उसने खा लिए हैं. ठीक है, उसने ईट कर लिए. ठीक है, टोटल मैंगोज कितने थे? 5. रिमेनिंग कितने रह गए? 2 रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे, रिमेनिंग मैंगोज रह गए थे, और टोटल कितने थे? 5. सो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर द रिमेनिंग मैंगोज 2/5. ओके, क्लियर? होपफुली यू गेट इट वेरी वेल. And here the exercise, color the picture to represent the given fraction 1/2. So कितने पार्ट्स को इसमें, जो अपर पार्ट जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट उसको कलर करेंगे. सिंपल इज डैट. सो इसको यहाँ पे कलर करेंगे सिंपल एक पार्ट्स को, क्योंकि न्यूमिनेटर वाले पार्ट्स को हमेशा हमने टोटल पार्ट्स में से कंसीडर करना है. तो यहाँ पे उतने पार्ट्स को शेडिड करेंगे जो न्यूमिनेटर में लिखा होगा 2/5. सो कितनी यहाँ पे कॉन्स को हमने शेड करना है? 2 कॉन्स को. ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड? और यहाँ पे 2 कॉन्स को शेड कर दिया. सिंपल. कलर 1/3 बेटा मीन हमने टोटल पार्ट्स के 3 पार्ट्स बनाने हैं. टोटल जितनी भी हमारे पास चीज़ें होंगी उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं, और उसमें से सिर्फ एक पार्ट को कंसीडर करना है, एक पार्ट को शेड करना है. सो टेक दी थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लें. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 flowers. Okay, so first of all make 3 equal parts. If you make 1 3 3 equal parts इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने 1/3 पार्ट को शेड करना है. तो टोटल कितने पार्ट्स बनाएंगे? उसके 3 पार्ट्स बनाएंगे, तो उसमें से एक शेड करेंगे ना. तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एक पार्ट ये, एक ये पार्ट और एक ही पार्ट. इसको एक ही पार्ट कंसीडर करेंगे यहाँ पे. फिर 1/3 बनेगा. So just shade the flowers. Okay, just shade the flowers. Okay, so this is the 1/3 shaded part of the given fraction. Okay, clear? 1/3 मीन हमने टोटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. हालांकि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 9 फ्लावर्स है, तो हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया. 3 फ्लावर्स will be considered, will be packed into the one part. Okay, and 3 flowers in the second part, 3 flowers in the third part. We have shaded the first part. Okay, clear? Now
फाइंड द फॉलोइंग। ओके, इसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। 1/2 ऑफ 16 मीन हाफ ऑफ द 16 का हाफ। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई विथ 16, और इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि इस नंबर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/2 आएगा। So this becomes the also division question that you have very well understood in the chapter number 6, chapter number 7, division. So 16 divided by 2, this division line is also meant by division. Okay, जब इसको 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8। जब 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे बेटा देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड टेबल रीड करेंगे तो 2 8 ज़ार 16 आएगा। तो डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 8 ज़ार 16। ओके, क्लियर। सो स्टूडेंट 2 8 ज़ार 16, सो 8 इज़ आवर आंसर। ओके, सेम एज इट इज़ हर नंबर को 23 को 3 पे डिवाइड कर, सॉरी 27 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 40 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, 64 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स हाफ पार्ट ऑफ द 16, 1/3 पार्ट ऑफ द 27, मीन 1/3 पार्ट लेना 27 का, उसको डिवाइड करेंगे, उसमें से टोटल पार्ट में से लेंगे तो डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, एंड 1/4 पार्ट लेंगे 64 का, सिंपल 64 डिवाइडेड बाय 4, सो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? So this is lecture for today. Thank you.